गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अ, मैं आप सबका यहाँ पे बहुत दुखी मन से स्वागत कर रही हूँ। मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग फेडरेशन स्क्वायर पे मिले हैं क्योंकि हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं उन सब को जिनको बहुत बेदर्दी से मार दिया गया। The way I think human life matters. We human beings should be caring towards each other. So today we have gathered here not for protest but to pay our respect to those lives who have just left us, who have been killed brutally. I will say this is an awareness campaign we are starting on behalf of Vedic Global and all those human beings, those who believe that human lives are important. Now, Vedic Global considers its vision as Vasudev Kutumbakam, whole world is one family. We should be taking care of our family members. There are enough resources, but we do need to use our resources, our energy towards betterment of human beings. I don't know why some of our brothers and sisters are choosing the path to kill each other. As I said before, today we have gathered here to pay respect, and I should also pay my respect and acknowledge the Aboriginal and Torres Strait Islander people here in Australia. So now I will request all the members who are present here. You can see even the day is so gloomy and sad. In Melbourne it's winters, but these people have taken out their precious time to come here, pay their respect and create awareness. So we'll take a small break while we are paying tribute to those lives who've been taken away from us. Thank you. All right, as we are blessed to have our community members and some of our elders have joined us as well. From elders we always learn good things. They have requested that, yes, we have paid our tribute, but we should keep 1 minute silence so that we can pray for those souls who've been taken away before their time. So I will request everyone to just close our eyes for 1 minute in silence and pray. Thank you.
Thank you so much, dear friends, for paying your tribute. Now, I would request Avinash Renji. He wants to pay tribute, pay respect, pay homage by singing a song. Thank you, Avinash ji. वासुदेव 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 कुटुम्बकं वासुदेव 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 कुटुम्बकं वासुदेव 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 कुटुम्बकं वासुदेव 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 कुटुम्बकम। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है। सबको गले लगाना है, सबको गले लगाना है। वासुदेव कुटुम्बकम वासुदेव कुटुम्बकम। वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन फैमिली। सबको गले लगाना है, सबको गले लगाना है। वासुदेव कुटुम्बकम वासुदेव कुटुम्बकम वासुदेव कुटुम्बकम वासुदेव कुटुम्बकम। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन फैमिली। एक ही साथ जिएंगे हम, एक ही साथ जिएंगे हम। वासुदेव कुटुम्बकम वासुदेव कुटुम्बकम वासुदेव कुटुम्बकम। Thank you so much, Avinash ji. And we can see here, Avinash ji, the song he sang, it means that again, whole world is one family. We all need to love each other, hug each other, take care of each other, and we will be successful in achieving this goal one day very soon. Such a beautiful and appropriate song, Avinash ji. And Avinash ji is also from Kashmir. He is one of the Kashmiri Pandits. He knows what is happening there, what had happened there before. And we also have few more Kashmiri Pandits here, those who are part and parcel of Melbourne. But of course, they do have lots of sad memories, what their near and dear ones have faced in the past in Kashmir, and even at the moment they are facing it. So I will request Rakil ji to say few words. Rakil ji is also Kashmiri Pandit. Thank you, Rakil ji. Thank you, Monica. हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने, जो पिछले एक साल से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में। कश्मीर में लास्ट ईयर एक स्कूल में घुस के 2 हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन्हें आइडेंटिफाई किया इन द फुल प्रेजेंस ऑफ द स्टाफ एंड द स्कूल, और स्टाफ और स्कूल चुप रहा। एक वहाँ की प्रिंसिपल थी, उनको बाहर निकाला गया, और उनके साथ एक हिंदू था, टीचर था, उसको भी बाहर निकाला गया। वो हिंदू टीचर जम्मू के थे, और उन्हें सबके सामने ब्रॉड डे लाइट में गोलियों से भून दिया गया। और हम लोग कहते हैं कश्मीर नॉर्मल हो रहा है।
कश्मीर नॉर्मल नहीं हो रहा है। कश्मीर में जो पिछले 1 साल से जो घटनाएं हुई है, ये सारी बातें जो है हमें एक चीज़ याद दिलाती है कि नथिंग इज़ नॉर्मल इन कश्मीर। हमें लगता है कश्मीर नॉर्मल है क्योंकि 4-5 साल से विजिटर जा रहे हैं, भारत के लोग जा रहे हैं, और हमें लगता है कश्मीर सब कुछ नॉर्मल नहीं। कश्मीर नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो भारतीय सरकार है वो कश्मीरी हिंदुओं को, खासकर कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी सरदारों को वापस उनका पुनर्निवास करने जा रही है कश्मीर में, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। ये कैसा पुनर्निवास है कि आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसी के अंदर आप लाइफ जी रहे हैं, वहाँ से आपको बसों में अंडर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ गार्ड ऑफिस लिया जाता और वापस लाया जाता है। ये तो एक गेटो हो गया। ये नॉर्मेलिटी नहीं है कश्मीर की। कश्मीर नॉर्मल था 2 साल पहले तक क्योंकि वहाँ कोई कश्मीरी हिंदू जा नहीं रहा था, और जब से भारतीय सरकार ने ये अनाउंस किया है कि अब हम कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ ले जाएंगे, उन्हें नौकरियाँ देंगे, तो टारगेटेड किलिंग्स फिर से शुरू हुई है। नथिंग इज़ नॉर्मल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कश्मीर में ये कैसी लाइफ है कि आप एक जेल के अंदर बैठे हैं, जेल से आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से सीधा वापस आते हैं। ये कैसा नॉर्मल है? ये कैसा नॉर्मल है कि आप की जो वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने अब फिर से अखबार में इश्तिहार, पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह लगाना शुरू कर दिए हैं कि जो हिंदू आ रहे हैं यहाँ ना आए और जो यहाँ रहते हैं वो वापस चले जाएं। ये कैसा नॉर्मल है कि एक फार्मासिस्ट बिंद्रू साहब, वो टेररिज्म जब पीक पे था उसके बाद भी वो वहाँ रहे, और वहाँ पे उनकी एक फार्मेसी की शॉप थी डल गेट के पास। वो वहाँ पे फार्मेसी मेडिसिन सप्लाई कर रहे थे लोकल्स को, और मैं एम्फेसाइज करता हूँ लोकल मुसलमानों के लिए, वहाँ कोई हिंदू नहीं था। उसको लास्ट ईयर अक्टूबर में टारगेट करके उससे भी गोलियों से भून दिया गया। ये कैसा नॉर्मल है? लोकल पॉपुलेशन कहते कि हमें हिंदू भाई वापस चाहिए। आपको हिंदू भाई वापस चाहिए तो आपने इन लोगों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया है? ये चंद दहशतगर्द कैसे वहाँ रह रहे हैं, जबकि आप लोग क्लेम करते हैं, और जब मैं आप लोग कहता हूँ, आप मुसलमान लोग कश्मीर के क्लेम करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, हिंदू भाई वापस आए, इसीलिए वापस आए क्या? आप लोग पहले, और जो वहाँ दहशतगर्द हैं, दे आर ओनली सर्वाइविंग ड्यू टू लोकल सपोर्ट। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और आज उसके बाद से कुछ हफ्ते पहले एक कश्मीरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था बडगाम में, उससे बाहर निकाल के गोलियों से भून दिया गया। ये कैसा नॉर्मल है? मेरी भारत की सरकार से ये गुजारिश है कि ज़रा ये ढोंग बंद कर दें कि कश्मीर नॉर्मल है। कुछ भी कश्मीर में नॉर्मल नहीं है। कश्मीर अभी भी वैसा ही है। कश्मीर में पीस था, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि वहाँ हिंदू नहीं थे, कोई हिंदू वापस नहीं जा रहा था। अब चूंकि लोकल्स को लग रहा है कि हिंदू वापस जा रहे हैं, तो फिर से वही यादें ताज़ा हो गई हैं, टारगेटेड किलिंग्स। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकल पॉपुलेशन कुछ भी कर ले, ये जो काम है ये गवर्नमेंट को करना है, और गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट ने 4-5 हज़ार नौकरियां दे दी लोगों को, उनको जेल के अंदर रखा गया कश्मीर में, वहाँ से। ये कैसा नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है। मैं आज इस मीडियम के थ्रू जो कश्मीरी हिंदू हैं और हिंदूज़ एट लार्ज पूरी दुनिया में, प्लीज़ आप लोग ये जो है बातें प्रोपेगेट करिए अपने में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है कश्मीर में। मैं इतना कहूँगा कि हम लोगों ने अपना कश्मीर, जो कश्मीरी पंडित हैं, हम लोगों ने कश्मीर के बारे में सोचना बंद नहीं किया है, लेकिन जो अभी हालात हैं कश्मीर में, मुझे नहीं लगता कि हम लोग वहाँ अभी कुछ देर जा सकेंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो लोग आए हैं आज, उन लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारी फाइट जारी है। ओके, लॉन्ग लिव कश्मीर, लॉन्ग लिव कश्मीरी पंडित्स, एंड लॉन्ग लिव इंडिया।
थैंक यू डॉक्टर जी। बहुत आपने जो भी शब्द आपने शेयर किए हैं, दैट इज़ सच अ ट्रू फीलिंग कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर हार्ट, बिकॉज वी कैन इमेजिन इट मस्ट बी सो डिफिकल्ट when you're forced to leave your house, leave your home, ancestral home. So now I will like to request Rakesh Raizada to say a few words. Rakesh, can I request you to come here and share your thoughts, please? Thank you. And I must say, while Rakesh is coming here, human life matters. Doesn't matter whether we are Hindu, we are Sikh, we are Muslim, whatever faith we follow, human lives matter. As I said before, we have to support each other rather than kill each other. Thank you. Over to Rakesh. नमस्कार। कुछ दिन पहले हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने ये बतलाया कि राहुल भट्ट का बड़ी निर्ममता से जो है हत्या कर दी गई, जघन्य अपराध किया गया उनके संग। तो मैं सोचने लगा कि अभी थोड़े दिन पहले द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई, जिसने बगैर किसी छुपाव दुराव के वो सच्चाई प्रकट करी सबके सामने कि क्या एक्चुअली हुआ था। तो उससे हमें लगा कि लोगों में एक जागरूकता आएगी कि अब तो लोगों की आत्मा जागृत होगी। इवन जिन्होंने ये मारकाट करी थी उन्होंने भी खुद आगे आके माना कि हाँ हमने किया था ये। तो ये लगा कि अब लोगों में जागरूकता आएगी, उनकी आत्मा जागेगी और अब ये मारना काटना बंद करेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब भारत का विभाजन हुआ था वो धर्म के हिसाब से हुआ था और धर्म के हिसाब से होके पाकिस्तान बना दिया गया मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान को कहा गया कि हिंदुओं के लिए। पर हिंदुओं ने कहा कि नहीं भाई, हम सब धर्मों का सम्मान करेंगे, सबको एक साथ रखेंगे। ये गलती करी उन्होंने। मुसलमान जो थे पाकिस्तान जाने की जगह यहीं रह गए और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ सन 47 में तो वहाँ 22% जो थे हिंदू थे, लेकिन आज देखिए घट के वो 2% रह गए, 3% रह गए। बांग्लादेश में उस समय 30% हिंदू थे, वो आज घट के 7% रह गए हैं। वहीं भारत जिसने जो सही रास्ता चुना कि सब धर्म को हम सम्मान करेंगे, ह्यूमन लाइफ का सम्मान करेंगे, वहाँ मुसलमान 8% से बढ़ के 30% हो रहे हैं, 20 से 30% हो रहे हैं। तो भारत तो अपना मानवतावादी आगे कार्य कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये हिंदुओं का या और माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन हो रहा है। और यही चीज़ जो है कश्मीर में हो रही है, यही चीज़ केरला में हो रही है, वेस्ट बंगाल में हो रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ स्टेट ऐसे हो गए हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गए हैं। आप बढ़ाइए पॉपुलेशन, आप रहिए साथ, लेकिन ये अमानवीय कार्य तो न कीजिए। धर्म के नाम पे आप जो है किलिंग करते हैं, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो। इससे आपको क्या मिल रहा है? आप पिछड़ते जा रहे हैं। आप देखिए आज भारत जो है, जो मानवतावादी और पढ़ाई लिखाई पे जोर दे के आदमी को संस्कार दे रहा है, आज दुनिया में भारतीय लोग जो हैं सारे बड़े बड़े CEOs पूरी दुनिया में भारतीय हैं। वहीं आप मारकाट कर रहे हैं तो आप जो हैं प्रसिद्ध हो रहे हैं कि आपके यहाँ बड़े से बड़ा टेररिस्ट उनको अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। सारी दुनिया को इनको प्रेशर करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये मुसलमान, ये कौन है? ये जो मुसलमान है कौन है? ये बाहर से तो नहीं आए थे, औरंगज़ेब के संग तो नहीं आए थे, बाबर के संग तो नहीं आए थे। ये बाबर, अकबर, शाहजहाँ, इन लोगों ने हिंदुओं पे अत्याचार करके उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। तो ये इनके पूर्वज सब हिंदू थे। तो जागिए कि आप भी हिंदू ही हैं। आपके ऊपर, आपकी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, तब आप ऐसे पैदा हुए। तो इसलिए जो है आप जो है जागिए कि आप मानव हैं, ह्यूमैनिटी पे विश्वास कीजिए और ये किलिंग्स बंद कीजिए। चाहे धर्म के नाम पे करने से आपका ही नुकसान होगा।
कहीं कोई इससे तरक्की नहीं मिलेगी। इसलिए अनुरोध यही है सबसे कि इस जागरूकता को बढ़ाएं, लोगों में मानवता जगाएं। यही हमारा प्रयास है कि वी वांट ह्यूमैनिटी टू प्रॉस्पर। स्टॉप किलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, स्टॉप किलिंग हिंदूज, स्टॉप किलिंग सिख्स, स्टॉप किलिंग minorities. That is my request, that is my message to the humanity and the communities in the world. Thank you. Thank you, Rakesh. I think the message we can take away from Rakesh's feeling, what he has shared, is if we are taking care of each other, as we said, Vasudev Kutumbakam, whole world is one family. We take care of each other as family members, we can all prosper. There are enough resources in the world. If we stay in the positive zone, there we can all be happy, as Rakesh has shared few examples. So let us start our walk towards humanity, towards taking care of each other. And with this, I would like to request Anjali to share her thoughts as well. Thank you, Anjali. Thanks, Monica. I am Anjali. I am an Indian who has made Australia home. And I want to tell you what a privilege it is to live in a country which is free of terrorism, which is free of killing. So I want to appeal to the people in the world, humanity in the world. We are one family and we should learn to live together. Why kill on the basis of religion? Why kill Hindus in particular? Why kill Sikhs in particular? Look back at history. When have Hindus massacred? When have Hindus converted people? I don't think I know. The history that I know, I have never heard that as a statement. Hindus, I think it is upon us. It is upon the educated Hindus, the successful Hindus around the world. We are contributing to the economy. We are contributing good to the world. One good that we need to do together is to make the world aware of the good virtues of Hinduism, the philosophy of Hinduism. We don't believe in conversion. We don't believe in killing people, but we should not accept being massacred. Massacre in Kashmir, that I am a Kashmiri, that my family has suffered. Massacre in my extended family has suffered. Massacre in Pakistan of Hindus. Massacre in Afghanistan for Sikhs. I think the world has to wake up. Hindus have to wake up. We are not terrorists. We do not kill, but we should not accept being killed, being massacred, being converted. What are we leaving behind for our children? Please wake up. It is on us, educated, modern, successful Hindus. We have to wake up and we have to unite and make a call against terrorism, against being massacred. We are not doing anything wrong. We are not picking up arms, but be aware of what is happening around the world. Look at the number of Muslims. Look at the number of Muslims in India after partition. Look at the number of Hindus in Pakistan since partition. Look at the number of Hindus in Bangladesh, Sikhs in Afghanistan. This is a reality check. You don't even have to go back into history. You just have to look back 50 years, 100 years. Wake up. Wake up for Hinduism. A religion of peace, a religion of humanity, a religion of living together. I am a Hindu, a proud Hindu who lives happily with all religions. But do not forget, I am Hindu. So please wake up and protect yourself, your family, your generation. And a religion of spreading peace and love. We are one world, one family. Learn to live as good human beings. Hinduism is a model for living good human life. That's all I can say. Thank you. Thank you, Dr. Anjali Tikku. She is a professor in a university here in Melbourne, and we are very blessed that you could join us today. And the way you have shared your thoughts is amazing. Again, we are in Melbourne, in Australia, where it is a very peaceful country. And hearty congratulations to Anthony Albanese, our new Prime Minister, who has been elected just yesterday. And we are in Melbourne, which is one of the most multicultural city in the world. So we live in harmony here, and thanks to our Australian government, that they take care of all the people here. Same way we have requests to all the governments in the world that rather than spreading hate and all these negative feelings,
please, please, please promote peace. Peace is very important for all human beings. With this, again, I will say many thanks to Vedic Global and to Rakesh Ganju, Ramon Helps, and all the members of our community who are present here, who are passionate about spreading love, peace, and harmony. And with this, I will like to say thanks for listening to us. It's Monica Sharma Raizada representing Vedic Global from Melbourne, Australia. Thank you so much, everyone. And for the viewers, I'm sure many of you would like to join us, as I said in the beginning, our awareness campaign to spread humanity, to spread peace, love, and harmony. If you want to join us, you can go to our website vedicglobal.org and you can just fill in online form and we'll be in touch with you. Thank you so much. सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा सिद्धांत है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं एक हों मानवता के आधार पे, ना कि धर्म के आधार पे एक दूसरे को मारें। यही प्रार्थना है। थैंक यू राकेश जी। नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश गंजू आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं लोटस वर्ल्ड में। आज है 22 मई 2022 और आज मेलबर्न में एक रैली रखी गई है जो कि हिंदू लाइव्स मैटर के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी ये किलिंग्स हो रही है, उसके ऊपर यहाँ पे वैदिक ग्लोबल ने एक रैली ऑर्गेनाइज़ की थी जो कि अभी ये कंक्लूड हुई है मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में। हमारे साथ अभी है राकेश राजादा जो कि प्रेसिडेंट है वैदिक ग्लोबल के। राकेश जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जो आप आज का जो प्रोटेस्ट रैली थी ये किस लिए थी? भाई जो जैसा कि आप लोगों ने बतलाया कि अभी रिसेंटली राहुल भट्ट जी का निर्ममता से कत्ल कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि फिर से ये रिलीजियस किलिंग्स शुरू हो गई। फिर से लोग डरा रहे हैं कि लोग वापस कश्मीर ना आ सकें। तो ये सुन के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अभी कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई थी और कश्मीर फाइल ने बड़े खूबसूरती से, बड़े उस तरीके से सच्चाई सामने लाई कि आपने जो है अपने पड़ोसी को, आपने अपने टीचर को, आपने अपने एम्प्लॉई को केवल धर्म के आधार पर मार दिया, उनको निकाल दिया। तो एक तरीके से ये मास एक्सोडस हुआ था 1990 में, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ था। बट इस कश्मीर फाइल ने बड़ी जागरूकता सब में पैदा कर दी, दुनिया भर में। जो लोग कश्मीर को नहीं भी जानते थे वो भी जान गए, और ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने ये काम किए थे, जैसे जो है यासीन मलिक वगैरह, उन्होंने अपने गुनाह कबूल किए। जिन्होंने मारा था उन्होंने अपने गुनाह कबूल किए। तो हमें लगा कि लोगों में बदलाव आएगा, आत्मा जागेगी और अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब जैसा कि मैंने अपने उसमें कहा कि ये परसिक्यूशन रिलीजियस बेस पे बहुत तेज़ी से हो रहा है, न केवल हिंदुस्तान में, न केवल पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, कई हिंदुस्तान में कश्मीर सहित कई जगहों पे हो रहा है। क्यों? आप अगर यही मारते काटते रहोगे तो आपकी मानसिकता यही बनेगी। 6000 आपने मदरसे शुरू कर दिए हैं और उसमें जो है यही सिखा रहे हैं लोगों को मारना काटना। उससे क्या होगा? मानवता सिखाइए, जो वैदिक वैल्यू हम सिखाना चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम, इस लाइन पर चलिए। देखिए इस लाइन पर चलते हुए भारतीय कहाँ पहुँच गए। आज दुनिया के सबसे बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके CEO सारे हिंदू हो रहे हैं। आप कहते हो कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? इसीलिए कि आप गलत तरफ लगे हुए हो। आप मानवतावादी बनो, आप सब हमारी तरह प्यार से रहो और ये सीखो तो सबका भला होगा। तो यहाँ पे लेट्स कीप इट शॉर्ट, यहाँ पे एक मैसेज जो कि पूरे विश्व के लिए है कि नॉट ओनली फॉर हिंदूज या फॉर ओनली फॉर वन रिलीजन, फॉर होल ह्यूमैनिटी। एक मैसेज जो कि उनको ये प्रोत्साहित करेगी ताकि वो टारगेटेड किलिंग या कोई भी किलिंग, टारगेटेड छोड़िए, कोई भी किलिंग ना करें। बिल्कुल यही है कि आप जो है
अगर दूसरे को मारेंगे तो या आप तो अपराधी हो गए, आप अपराध करेंगे तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी। चाहे ये कब तक सहते रहेंगे जिनको आप मार रहे हैं, कभी तो ये उठेंगे या सरकारें जहाँ पे आप मार रहे हैं वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगी, तो उससे आपका ही बुरा होगा, आपके परिवार का बुरा होगा। तो इससे आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना भी नहीं कर रहे हैं और दूसरों का जिनको आप मार रहे हैं उनका भी भला नहीं कर रहे हैं। किसी का नाम पूछ के उसको मारना ये किस हद तक ये मानवता सिखाता है? अमानवीय है। आप ढूंढ ढूंढ के हिंदुओं को निकाल रहे हो, ढूंढ ढूंढ के सिखों को निकाल रहे हो, ढूंढ ढूंढ के माइनॉरिटीज़ को निकाल रहे हो, मार रहे हो। तो आप क्या करना चाहते हो कि उनको अपना दूसरे धर्म को ख़त्म करके अपना धर्म बढ़ाना चाहते हो? यही तो इसका मैसेज हुआ। ये बिल्कुल गलत है। एक भगवान है, सब उस भगवान को मानते हैं, तरीके अलग अलग हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में यही है कि भाई एक है भगवान, एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हैं। एक जागरूकता शुरू हुई है तो इससे जो है लोगों में समझ आएगी, लोगों को पता लगेगा कि दुनिया में और उस जगह पे भारत में और उसके आसपास क्या हो रहा है, तो उन लोग को सही चीज़ें पता लगेंगी। सही चीज़ें नहीं पता लगती हैं और प्रोपेगेंडा करके उनको बरगलाया जाता है, तो कम से कम वो चीज़ तो कम होगी। थैंक यू राकेश जी हमसे बात करने के लिए। अब हमारे साथ जुड़े हैं रखिल राजदान जी। रखिल राजदान जी सेकंड प्रेसिडेंट है कश्मीरी पंडित कल्चरल एसोसिएशन के, और आज हमारे साथ बात करेंगे कि जो कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही है कश्मीर में उसके ऊपर। रखिल जी, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है कि जो अभी रिसेंट टारगेट किलिंग्स हुई है कश्मीर में, नाम पूछ के मारा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही ख़राब डेवलपमेंट है कश्मीर के लिए, स्पेशली जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम लोगों ने नॉर्मल सी ऑलमोस्ट ला दी है कश्मीर वैली के अंदर। मैं जम्मू की बात नहीं करूँगा, कश्मीर वैली के अंदर, और इट जस्ट फ्लाइज इन द फेस ऑफ दैट क्लेम बाय द गवर्नमेंट। ये जो टारगेटेड किलिंग्स है, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज टू कश्मीरी पंडित्स, टू हिंदूज एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे इन पर्टिकुलर, कि आपकी जो ये कोशिशें हैं पुनर्वापसी की, ये हम होने नहीं देंगे। क्योंकि इसी बेस पे 1989 के बाद से यही एक बेस था कि वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग की गई, और उसके बाद 2021 तक या 2020 तक जब वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी, ये रंबलिंग्स फिर से शुरू हो गई वहाँ पे, स्पेशली जो पार से ट्रेन टेररिस्ट थे, और वो टेररिस्ट तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक उन्हें ब्रॉड लोकल सपोर्ट नहीं है। तो ये बड़ा गलत कहना होगा कि लोकल पॉपुलेशन तंग आ गई है, फेडअप है, वो चाहते हैं कि कश्मीरी भाई लौटे नहीं। ये सब एक नकाब है। क्या गवर्नमेंट के हिसाब से देयर आर नो मोर देन 250 टेररिस्ट इन द स्टेट। तो क्या मैं ये मानूं कि दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस cannot control 250 people? Yes, they cannot control 250 people, and उसका एक ही रीज़न है, because of broad local support. लोकल सपोर्ट के बिना उन्हें कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कल को अगर सारे लोकल मुसलमान खड़े हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दिस पीपल, टेररिज्म का खात्मा इतनी जल्दी हो जाएगा। तो ये बड़ी गलत फहमी है हमारी कि वहाँ पे सब नॉर्मल हो रहा है, लोग फेडअप हैं, लोकल फेडअप हैं। अगर लोकल फेडअप है, ज़रा मुझे एक केस बताइए जहाँ लोकल्स किसी एरिया में जहाँ टारगेटेड किलिंग हुई है, उठ के उन्होंने टेररिस्ट को पकड़ा है और गवर्नमेंट के हवाले किया है। क्या आपने ऐसा कुछ सुना? नहीं। इसीलिए मेरा मैसेज बड़ा क्लियर। यहाँ पे जो आपने बोला उसके ऊपर मैं ऐड करना चाहूँगा, जब राहुल भट्ट को मारने आए थे, कि जो मैंने सुना हुआ है कि लोग मिलिटेंट ने, आतंकवादियों ने नाम पूछा है और राहुल भट्ट के कलीग्स ने बोला कि ये राहुल भट्ट है। सो ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इट वाज अ कंस्पिरेसी ऑफ द कलीग्स आल्सो हु हेल्प द टेररिस्ट टू आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी। तो इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? बिल्कुल, यही तो मैं बात कह रहा हूँ आपसे राकेश जी। नॉर्मल नहीं है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है वहाँ नॉर्मल है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है ये नॉर्मल है। और वो सारा कुछ नकार दिया जो पिछले साल मूवी रिलीज़ हुई थी, जो इस साल यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आई, द कश्मीर फाइल्स। उसने एक छोटा सा पिक्चर दिया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। हमारे जो भारत में कश्मीर के बाहर जितने भी लोग हैं, खासकर हिंदू,
या तो वो एक लाला लैंड में थे, या दे चोज टू रिमेन साइलेंट, और दे वेर अनअवेयर। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मेरा एक व्यू है, क्योंकि मैं उस समय 1990 में बेंगलोर में था, और मैंने जब ये बात वहाँ लोगों को बताना शुरू की, किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। सो इसीलिए मैं ये जो व्यू, लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमें वी आर वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस। आप लोगों को पता था, यू चोज टू कीप क्वाइट। अब कश्मीर फाइल्स ने वो एक मूवी के रूप में आपके सामने खड़ी कर दी, तो सडनली जो आज की जनरेशन है, या जो जनरेशन आफ्टर 1990 है, दे हैव रियलाइज्ड कि माय गॉड, कश्मीरी पंडितों के साथ इतना कुछ हुआ और पूरा हिंदुस्तान चुप रहा। कश्मीर फाइल्स मूवी ने एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो पैदा कर दी इंडिया में, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये जो अवेयरनेस पैदा हुई है, ये एक हिंदू अवेकनिंग आ जाए इंडिया में, बिकॉज वो भी सल्यूशन नहीं है इसका ये सल्यूशन है कि एक बड़ी क्लियर मैसेज, स्ट्रिक्ट मैसेज टू ऑल कम्युनिटीज़ इन इंडिया है कि लॉ एंड ऑर्डर और जो जस्टिस है, दैट इज़ पैरामाउंट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट की इनएक्शन इज एब्सोल्युटली टेलिंग। एक प्रश्न करूंगा, मुझे पता आप जवाब उसी प्रश्न के ऊपर दे रहे हो कि यहाँ पे जो एलजी साहब का क्या रोल रहा है कि पोस्ट दिस इंसिडेंट, पोस्ट दिस किलिंग, क्योंकि जितना नरम बर्ताव एलजी एंड जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का रहा हुआ है, केवल 4 लाख रुपए उनको कॉम्पनसेशन दिया गया और एक 4th क्लास की नौकरी उनके राहुल भट्ट की वाइफ को दी गई, जो कि उन्होंने ठुकरा दी। क्या खाली जब एक दिल्ली में कोई मरता है उसको 1 करोड़ रुपये दिया जाता है, और जब यहाँ पे एक हिंदू मरता तो केवल 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये कहाँ तक का सही है? उसका एक रीज़न है राकेश जी, और इसमें मैं भारत सरकार या हिंदुस्तान के हिंदुओं को, या हिंदुस्तान की जो बाकी पॉपुलेशन है कश्मीर से बाहर, उनको दोष नहीं दूंगा। हमारे यहाँ कश्मीरी में एक कहावत है कि अगर हमारी मुर्गी बुरी नहीं होती तो पड़ोस के घर में अंडा क्यों देने जाती। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कश्मीर में जो है, कश्मीरी पंडितों में जो है, हमारी एक वॉइस नहीं है, हमारा एक कोई लीडर नहीं है, या कुछ लीडर नहीं है जिनको हम ब्लाइंडली फॉलो करें, और वो हमारा जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो केंद्रीय सरकार को बोलें। हमारे यहाँ सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, और इसका प्राइम उदाहरण है कि जब 8 साल पहले इलेक्शन हुआ था जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट जीत के आई थी, हमारे कश्मीरी पंडित भाई दिल्ली में वोट देने नहीं गए क्योंकि उस दिन गर्मी थी, और खब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में 12% वोट पड़े थे। अगर हमारे कश्मीरी भाई 25-30% की मात्रा में भी बाहर आके वोट देते तो हमारा एक कश्मीरी पंडित भाई आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो ये शर्म आनी चाहिए हम सब कश्मीरी पंडितों को कि गर्मी के कारण हम वोट देने गए, लेकिन हम बाहर जाके बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं। गवर्नमेंट उतना ही करेगी जितना आप उनको जाके प्रेशर करोगे। दिल्ली में प्रेशर है केजरीवाल फिर भी एक हाई प्रोफाइल किलिंग हुई थी, केवल 4 लाख रुपए देना, ये कहाँ तक का एक न्याय है? ये उसका तो यही तो मैं कह रहा हूँ राकेश जी, आजकल की दुनिया में पॉलिटिक्स है, लॉबी जितनी आपकी 4 लाख से ज़्यादा तो हमने क्राउड कैश एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमने एक फंड रेजिंग का कैंपेन किया था, 10-20 लाख तो वहाँ पे हमने जमा करके दिए हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने कौन सा 4 लाख रुपए, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप 1 करोड़ रुपए दे सकते हो किसी को, तो हमारे राहुल भट्ट को क्यों नहीं? एग्जैक्टली आप मुझे बताइए, जो 200 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित संगठनें हैं जम्मू में, उन लोगों ने एकजुट होकर यूनाइटेड वॉइस में क्या रिप्रेजेंटेशन की किसी के लिए पिछले 1 साल में? हाँ, हमने तो बड़ी रिप्रेजेंटेशन की कश्मीर फाइल्स के लिए। मैं कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट में, बहुत ही अच्छी मूवी थी, टाइमली मूवी थी, थोड़ी लेट आई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जब आप कश्मीर फाइल्स को वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट करके उसे आप इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनाते हो, तो क्या हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम कुछ लोगों के लिए जिन्हें टारगेट करके मारा गया, बेरहमी से मारा गया, उनके लिए और पैसा नहीं ला सके? हम सब कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें क्यों हम लोगों को एक फंड, चैरिटी फंड रखना पड़ता है इन लोगों के लिए जो कि एक गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे? नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर भी मरता है तो उससे भी 25-30 लाख इंश्योरेंस मिलता है। राहुल भट्ट के लिए क्या था?
आपने ये सवाल पूछा कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, ये बहुत अच्छा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, रोड बिल्डिंगे और पैसा ला रही है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का जहाँ की कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का फ़ायदा। अभी आप 50 वो रोड किस काम के जिनके ऊपर चलने वाले लोगों को मारा जा रहा है। 50,000 करोड़ 100,000 करोड़ आप ये अनाउंस करते हैं, वंडरफुल, ठीक है भाई, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है, रोड बिल्डिंगे, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, क्या लोगों के लिए कुछ हुआ आपके लिए? क्यों 32 साल के बाद भी आज जागती कॉलोनी में हज़ारों लोग रेफ्यूजी की तरह रहे हैं, उन लोगों के लिए मकान बने हैं, क्या आपने उन मकानों की हालत देखी है? इससे बड़ी गाली और शर्म की बात क्या हो सकती है? इसीलिए मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडित संगठनें बंद हो जाएं और एक संगठन उठाए और उसमें से हमारे 1 या 2 या 4 या 5 लीडर हों जो कि हमारी वॉइस केंद्र तक ले। ये अमित शाह जी ने भी कहा था और ये मोदी साहब ने भी कहा था गवर्नमेंट में आने से पहले ये तो बताओ आपका लीडर कौन है। यही बात राजीव गांधी ने 1990 में 89-90 में कही थी, आपका लीडर कौन है। जब कश्मीर से लोगों को भगाया गया कश्मीरी पंडितों को, तो कश्मीरी पंडित राजीव गांधी से मिलने गए थे और मुझे याद है एक सज्जन जो मेरे रिलेटिव, उन्होंने कहा था, राजीव गांधी ने पूछा था आपका लीडर है कौन। वो सवाल आज तक उसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं किसी को लीडर नहीं देखता हूँ कश्मीर में। कौन है वो लीडर? या तो वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या तो जब आप पार्टी से जुड़े होते हैं आप पे एक प्रेशर होता है कि पार्टी लाइन स्टो करनी है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ पिछले 30 साल से कि जब तक हम अपना एक पार्टी कश्मीरी पंडित पार्टी नहीं बनाएंगे, एक अलग पार्टी जो कि हमारी मांगे एकजुट होकर सरकार तक ले जाएगी, तब तक हमारा फ्यूचर नहीं है। और ये बात जब तक हमारे दिमाग में नहीं घुसेगी तब तक हम सफ़र करते रहेंगे। हम जाएंगे, हमें अच्छी नौकरियां मिलेंगी कश्मीर में, लेकिन आप पिंजरे में बंद रहेंगे और पिंजरे में ही रहेंगे पूरी लाइफ। और जब तक हमारी 2nd 3rd जनरेशन्स ख़त्म हो जाएंगी और मेरे ख्याल से 100 साल फ्रॉम नाउ कश्मीरी पंडित लोग कहेंगे अरे देयर यूज्ड टू बी पंडित्स ऑल्सो इन द वैली। और जब तक ये बात हम लोगों में ये जागरूकता नहीं आएगी तब तक कश्मीर में कोई फायदा नहीं है। रखिल जी, थैंक यू लोटस वर्ल्ड से बात करने के लिए। आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि ये प्रश्न ये है कि कश्मीरी हिंदुओं का लीडर कौन है। जब तक ना इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मुझे लगता है तब तक ये टारगेट किलिंग्स ऐसे ही होती रहेगी और इस जो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका भी कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में जाके देखना पड़ेगा, अपने घर साफ करने पड़ेंगे, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हमारा लीडर कौन है। जब तक ना हमें सभी घर से एक ही उत्तर मिलेगा, मुझे लगता नहीं है कि ये हमारा कुछ भला होने वाला है। ऑन दिस नोट मैं राकेश गंजू आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कि हमें लोटस वर्ल्ड के साथ जुड़े और हमें इतना बहुमूल्य प्यार दिया हुआ। जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का आइकन उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.